Hello, welcome dear student. In today's session we will discussing about the chemical equilibrium. आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ बच्चों chemical equilibrium के बारे में. What you know about chemical equilibrium? Equilibrium is balancing, all about balancing. What is chemical equilibrium? The symbolic representation of any chemical changes in terms of reactant and product are called chemical equilibrium. Suppose this one is the reaction, for example, nitrogen and hydrogen and form ammonia. Nitrogen and hydrogen are react and form ammonia, so it is the chemical reactions. What happens during chemical reactions? Bonds between the reactant molecules are break and new bond between the product are formed. कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट के बीच के बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बनते हैं. तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया हमने. नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, N2 डाइएटॉमिक फॉर्म में होती है. स्टैंडर्ड एलिमेंटल फॉर्म इसका नाइट्रोजन गैस फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में H2 डाइएटॉमिक एंड फॉर्म अमोनिया. तो यहाँ बॉन्ड ब्रेकअप होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं. तो बॉन्ड का ब्रेक होना और बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा रिप्रेजेंट करने की फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहा करते हैं स्टूडेंट. तो symbolic representation of any chemical changes in terms of reactant and product is known as chemical reactions. Now we will discussing about the types of chemical reactions. Chemical reactions are of two types. Then first one is homogeneous reactions and heterogeneous reactions. All the reactant and product are in same phase. For example, nitrogen here in gas phase, hydrogen also in gas form, ammonia also in gas. मतलब ये जो सिंबल नीचे दिया है गैस गैस गैस, बहुत आर इन सेम, एक ही स्टेट है गैस में, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे होमोजेनियस रिएक्शंस. अनदर वे हेटेरोजेनियस रिएक्शंस. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन मोर देन वन फेज. हियर सॉलिड जिंक इज इन सॉलिड फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड आर इन गैस फॉर्म. इट फॉर्म ZNO, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल के जिंक के साथ गया ZNO जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये गैस फॉर्म में. तो यहाँ देखो अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग फॉर्म्स के अंदर है. इट मीन्स दिस इज द हेटेरोजेनियस रिएक्शंस. तो सेम फॉर्म में होता है तो होमोजेनियस रिएक्शन, और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है तो हेटेरोजेनियस रिएक्शंस. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉर्म में हम बात करते हैं रिएक्शंस के अंदर. दूसरी टाइप आता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस. ओके, तो व्हाट यू नो अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस? आप क्या जानते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन से और इरिवर्सिबल रिएक्शन से, आपका क्या जानना है? तो हम बात करते हैं देयर आर अनदर वे ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड अनदर इज द इरिवर्सिबल रिएक्शंस. Irreversible reactions. What is reversible reaction and what is irreversible reactions? What you know about reversible reaction? What you know about irreversible reactions? तो दो पार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स का हम. रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है? द रिएक्शंस व्हिच अकर्स इन बोथ द डायरेक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. इधर सपोज करो कि ये रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ जा रही है. Reactant form product, product also form reactant are called reactions. Reversible reaction, both the directions, reactant to product, product to again reactant. तो हम कह सकते हैं the chemical reactions in which the product can be formed back to reactant, मतलब product वापस reactant बना सकते हो, तो उसको हम कहेंगे reversible reactions. तो आप इसका लिख लेना chemical reaction in which product, the reactions in which products can converted back into reactant. The reactions in which product can products can back into reactants are called reactants. Reactions in which products can back into the reactants are called reversible. मतलब reactant to product, ये product वापस reactant बनाता है, तो उसको हम कहते हैं product can back into reactant are called reversible reactions. Back into reactants. For example देखो, suppose N2 plus 3H2 क्या बनाया? ये product बनाया अमोनिया. अमोनिया वापस क्या बना सकता है बच्चों? N2 plus 3H2 बन सकता है. तो
दिस इज द सिंबल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, फॉर एक वन मोर इलस्ट्रेशन हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ये गैस फॉर्म में है, आयोडीन ये भी गैस फॉर्म में है, क्या बनाती है 2HI गैस। तो इन दोनों से क्या बना है, ये देखो हाइड्रोजन आयोडीन दोनों मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट अगेन फॉर्म प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहेंगे। इसी तरह से इसकी बात करें हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो इसमें बच्चों पर क्या बता सकते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्शन। द रिएक्शंस in which प्रोडक्ट कैन नॉट बी, कोई भी प्रोडक्ट है वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकता, प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। The reactions in which product cannot be converted into reactants। मतलब क्या होगा कि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाएगा, बैक डायरेक्शन में जा सकती रिएक्शन। लेकिन इसमें कोई भी रिएक्टेंट है, सपोज ए, उसने प्रोडक्ट बना दिया बी वापस ए नहीं बना पाएगा, मतलब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट की तरफ नहीं जा सकता। ओनली एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये बहुत डायरेक्शन में चलती है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो इसको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट कैन नॉट बी फाउंड बैक रिएक्टेंट, तो इरिवर्सिबल प्रोडक्ट रिएक्टेंट वापस बना लेता है तो उसको कहेंगे हम रिवर्सिबल। इज इट क्लियर? बहुत सारी रिएक्शन होती है, जैसे देखो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैं NaCl डाल दूं तो क्या होगा बच्चों, ये NaCl NaNO3 सोडियम नाइट्राइट बन जाएगा। NaNO3 यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टूट जाएगा, यहाँ Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव टूट जाएगा, ये बन जाएगा AgCl, सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl। कुछ खास बात याद रखना, सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर और AgNO3 को लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। एक्स्ट्रा याद रखना, इसका लोकल नेम AgNO3 को कहते हैं लूनर कास्टिक। ये तो एक एक्स्ट्रा बात होगी बच्चों, खैर हमारे काम की नहीं है, कहीं भी अगर आपको जरूरत पड़े तो खाली जानकारी के लिए। चिली सॉल्ट पीटर, व्हाट यू नो अबाउट चिली सॉल्ट पीटर? NaNO3, sodium nitrate is known as चिली saltpeter and AgNO3 is known as Indian saltpeter। तो हमारा मेन टॉपिक था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जो दो डायरेक्शन में चलती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, बोथ द डायरेक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैन बैक फ्रॉम द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट बना सकते हो तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल, और प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी फ्रॉम बैक प्रोडक्ट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, ये केवल ओनली फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, इट प्रोसीड्स फॉरवर्ड, इस रिएक्शन में होगी, वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है, दोनों डायरेक्शन में, बट इट कैन ओनली ऑन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो इरिवर्सिबल होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर बच्चों, जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आपको समझ में आ गया होगा। फॉरवर्ड मींस रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में होती है, उसको कहते हैं इरिवर्सिबल। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में होती है तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या आएगा बच्चों, जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड में कन्वर्ट होंगी उसी तरह से बैकवर्ड वापस फॉरवर्ड, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाएगी, उसको हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम। हमारा जो आज का आगे का टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसकी रिगार्डिंग बात मैं आज के लेक्चर में आपके साथ करूंगा स्टूडेंट। चलिए हम बात कर लेते हैं व्हाट यू नो अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट यू नो अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके रिगार्डिंग बात आपके साथ अभी हम कर लेते हैं। अब और रिएक्शन का क्लासिफिकेशन करें हमने, जैसे होमोजेनियस रिएक्शन और हेटेरोजेनियस रिएक्शन बताया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताया। ऐसे इस दुनिया के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती है, कुछ रिएक्शन फास्ट होती है, कुछ स्लो होती है, कुछ रिएक्शन नैनो सेकंड में हो जाती है, वेरी फास्ट, हम प्लग झपकते हैं तुरंत रिएक्शन हो गई, है ना। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होती है जो फास्ट होती है, कुछ रिएक्शन को होने में कई वर्षों लग जाते हैं, मतलब बहुत धीमे धीमे होती है, जैसे रस्टिंग Fe2O3.X2 लोहे पर जंग लगने की प्रोसेस होती है, वो एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें कई वर्ष लग जाते हैं। तो
कुछ सम रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, सम आर वेरी स्लो। तो हम पढ़ने वाले जैसे फॉर एग्जांपल HCl और NaOH, आपको ये एसिड, ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल हम बात करें फास्ट रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, और दूसरी एक रिएक्शन लेते हैं हम स्लो रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शंस। जैसे मैंने कहा कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अंदर मैं कोई एसिड डालता हूँ, मिनरल एसिड लाइक HCl, तो क्या होगा, इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, NaCl plus H2O। व्हाट इज दिस? दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शंस। अनदर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एसिड और बेस से सॉल्ट बनता है, इसका नाम है सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ फास्ट रिएक्शन। अब हम दूसरा एग्जांपल स्लो रिएक्शंस का ले लेते हैं। जनरली द रिएक्शंस आर मोर मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट्स, मोर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ज्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल H2 plus I2 इट विल फॉर्म 2SI। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन है, हाइड्रोजन और आयोडाइड मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड मिलाते हैं, तो ये रिएक्शन थोड़ी फास्ट रिएक्शंस का एग्जांपल है। तो वैसे एक दूसरा और आता है, और रिएक्शन का क्लासिफिकेशन अगर आप पढ़ना चाहो तो एक होती है एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है एंडोथर्मिक। तो हम रिएक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए पहला टॉपिक था हमारा, वो था केमिकल रिएक्शंस। रिएक्टेंट सेंट इनटू द प्रोडक्ट आर नोन एज केमिकल रिएक्शन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो किसी भी इक्वेशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। केमिकल रिएक्शंस को कितने भागों में बांटा है हमने, पहला रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इससे पहले होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, फिर हमने कहा स्लो और फास्ट रिएक्शंस। अब और रिएक्शन का एक टाइप और बता दें आपको, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। व्हाट इज अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंड अनदर इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एक्सो एंड व्हाट इज एंडो? स्टूडेंट देखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। हीट इज इवॉल्व्ड मतलब हीट बाहर निकलती है, हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस केमिकल चेंजेस। हीट इवॉल्व होती है, इवॉल्व मींस हीट बाहर निकलती है, हीट इज एब्जॉर्ब, इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान हीट अगर एब्जॉर्ब होती है तो एंडो, हीट बाहर जाती है तो एक्सो। फॉर एग्जांपल R गिव्स P, कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस X किलो कैलोरी, हीट बाहर आ रही है, तो वो कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। इसी तरह से R gives P, रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यहाँ माइनस X किलो कैलोरी, मतलब हीट क्या जा रही है, बाहर निकल रही है। एंडोथर्मिक में हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, हीट इज इवॉल्व्ड। तो यहाँ पर आप कहोगे कि हीट इवॉल्व हो रही है और दूसरी में हीट बाहर निकल रही है। हीट एब्जॉर्ब दिस केमिकल रिएक्शंस, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है तो माइनस करने का, इसमें हीट इवॉल्व होती है तो प्लस करने का। समझ रहे हो आप मेरी बात को, हीट बाहर निकल रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सिस्टम हीट ले रहा है मतलब माइनस X किलो कैलोरी, हीट एब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ हीट बाहर निकल रही है। तो ये थी एक्सो और एंडो। नाउ जैसे अपन बात करें चेंज इन हीट एनर्जी, Q इज इक्वल टू प्लस, इसमें क्या होता है, चेंज इन हीट एनर्जी। देखना फिर से, चेंज इन हीट एनर्जी, इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी में चेंज होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q, चेंज इन हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में क्या होता है बच्चों, चेंज होता है, किसमें, एक्सो के अंदर। अब एंडोथर्मिक की बात करूं तो क्या होगा, डेल्टा H विल बी पॉजिटिव, एंडो के लिए डेल्टा H क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव, इसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव होगा, इसके लिए डेल्टा H नेगेटिव होगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फॉर्मेशन रिएक्शन जितनी भी, जैसे आप N2 और O2 से 2NO बना रहे हो, इसमें ये इसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन होती है। सपोज करो कि N2 plus N2 plus O2 that form 2NO is the example of एक्सोथर्मिक। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक की हम बात करें तो डिसोसिएशन रिएक्शन, कोई भी डिसोसिएशन रिएक्शन मतलब किसी का टूटना, वो सब क्या होगी, एंडोथर्मिक। ये फॉर्मेशन रिएक्शन जितनी होती है बच्चों ध्यान रखना, कोई भी फॉर्मेशन हो रहा है किसी का तो फॉर्मेशन रिएक्शन एक्सो है,
और डिसोसिएशन रिएक्शन जितनी भी होती है इस दुनिया के अंदर वो सब क्या है, डिसोसिएशन रिएक्शन एंडो है। फॉर्मेशन इज द एग्जांपल ऑफ एक्सो, डिसोसिएशन इज द एग्जांपल ऑफ एंडो। ओके श्योर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ आपसे। फिर हम बात करते हैं, एंडो के अंदर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, एक्सो के अंदर डेल्टा एच नेगेटिव होता है। इसमें हीट बाहर निकलती है, रिएक्टेंट चेंज इन प्रोडक्ट एंड हीट इवोल्व, हीट सिस्टम से बाहर आती है x किलो कैलोरी प्लस का, इसमें माइनस हीट एब्जॉर्ब ले रहा है, सिस्टम हीट ले रहा है, रिएक्टेंट चेंज इन प्रोडक्ट माइनस x किलो कैलोरी। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी स्टूडेंट। मैंने क्या बताया, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कौन कौन सी, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एंडो, एक्सो, होमोजेनियस रिएक्शन, हेटेरोजेनियस रिएक्शंस। दिस इज द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं एक्टिव मास। व्हाट इज एक्टिव मास और केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब हम टॉपिक पे आते हैं, व्हाट यू नो अबाउट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के टॉपिक पे आते हैं। इक्विलिब्रियम आखिरकार होता क्या है, उस टॉपिक पे आपके साथ बात कर लेता हूँ बच्चों। केमिकल इक्विलिब्रियम किसको कहा जाता है आखिरकार। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, हम जानते हैं रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सपोज करो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें क्या होता है, ये रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उस रिएक्शन को कहते हैं हम फॉरवर्ड रिएक्शन VF। और जिस रेट से प्रोडक्ट अगेन कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट, वापस प्रोडक्ट बैक हो जाते हैं रिएक्टेंट के अंदर, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बोले तो स्पीड बराबर हो जाती है, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम इज दिस वन। सपोज करो कि कोई हीरो एक एक्शन करता है, उसके सामने हीरोइन वापस रिएक्शन करती है, तो ये निशान हो गया इक्वेशन, मतलब इक्विलिब्रियम की स्टेट कब आती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट का मतलब क्या हुआ बच्चों, स्पीड। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction, that is the backward reaction। तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, this is called position of equilibrium। rate of backward reaction, जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उसी रेट से वापस बैकवर्ड रिएक्शंस हो जाती है। जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर, आपको समझ में आया होगा। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट अगेन कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट एट सेम स्पीड आर कॉल्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हम डायरेक्ट लाइफ में समझ लेते हैं। सपोज करो कि आपके घर पे ऊपर पानी का टैंक रखा हुआ है, घर में जो पानी का टैंक जिससे आप SMC का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पानी आता है, तो उस पानी के टैंक के अंदर पानी का लेवल यहाँ तक है। अब जिस रेट से पानी आ रहा है यहाँ से, उसी रेट से आपके घर के अंदर आप पानी का यूज भी कर रहे हो, पानी का लेवल सपोज करो कि यहाँ तक था, तो वो लेवल स्टेबल है। जिस रेट से पानी आ रहा है उसी रेट से पानी वापस बाहर भी जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, उसी रेट से बैकवर्ड, लेवल वहाँ का वहाँ है, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल एंड द पोजीशन आर इन इक्विलिब्रियम। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की पोजीशंस। इक्विलिब्रियम का जो नेचर होता है वो कैसी नेचर होती है स्टूडेंट, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। कैसी नेचर होती है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, हम बात करें नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की जो नेचर होती है वो कैसी हुआ करती है, डायनामिक नेचर हुआ करती है। कैसी, डायनामिक नेचर। डायनामिक का मतलब कंटिन्यू, सतत मोमेंट के अंदर, मतलब जिस रेट से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन कंटिन्यू जारी है, लेकिन वो पानी का लेवल है वो वहाँ का वहाँ है टैंक के अंदर। मान लो कि यहाँ 500 लीटर लिखा है और आपने जाके चेक किया 500 लीटर पे ही है, बट जिस रेट से पानी आ रहा है उसी रेट से आप उसका कंजप्शन भी कर रहे हो, यूज कर रहे हो, वापस दूसरे टैप से उसको बाहर फेंक रहे हो, तो पानी का लेवल वहाँ का वहाँ है, लेकिन रिएक्शन कंटिन्यू जारी है, कंटिन्यूटी में है रिएक्शन। तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है बच्चों, डायनेमिक नेचर हुआ करती है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी इक्विलिब्रियम क्या होता है। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, अगेन आई से, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस, देन स्टेट इज नोन एज
इक्विलिब्रियम स्टेज। द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है? व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट आर कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। Product again back form to reactant are called backward reactions. When the rate of forward reaction is equal to the backward reactions are called stage of equilibrium. तो जो ये इक्विलिब्रियम चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। सपोज करो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के अमोनिया बनाते हैं, उसी रेट से अमोनिया वापस डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना दे रहा है, तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे बच्चों? इक्विलिब्रियम की स्टेज। केमिकल रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम की स्टेज। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एक्टिव मास। व्हाट यू नो अबाउट एक्टिव मास? क्या होता है बच्चों एक्टिव मास? एक्टिव मास के बारे में बात कर लेते हैं हम। एक्टिव मास का फॉर्मूला होगा मोल्स पर वॉल्यूम्स इन लीटर। क्या होगा एक्टिव मास? मोल्स अपॉन वॉल्यूम्स इन लीटर। एक्टिव मास इज इक्वल टू मोल्स અને volumes in liter. This is called equilibrium. Now active mass is denoted by, this is the symbol of active mass. एक्टिव मास का जो सिंबल होता है बच्चों इस तरह का होता है। मोल्स निकालना हम जानते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल्स को हम n से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं? लीटर से। तो मोल पर लीटर इट इज नोन एज कंसंट्रेशन, या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं एक्टिव मास। इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिखूं तो मोल का फॉर्मूला, लीटर को मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो ये मोल कैसे निकलेगा? मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास या फिर एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मोल का फॉर्मूला। और पर लीटर तो ये मोल हो गया और इसका पर लीटर, तो इसको हम कहेंगे एक्टिव मास। दिस इज द सिंबल ऑफ एक्टिव मास। तो अगर ग्राम में दिया है तो ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम, अगर हम यहाँ ग्राम रख देते हैं तो ये ग्राम हो गया और ये मोलर मास हो गया और ये इक्विलिब्रियम के लिए लीटर हो गया। तो लीटर को हम बदलेंगे अगर मिलीलीटर में तो मिलीलीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिलीलीटर में बदलेंगे डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ मैं अगर ml करूँ तो ये 1000 नीचे ऊपर जाएगा, तो ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर वेट इंटू मिलीलीटर। दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एक्टिव मास। मीन्स हम कह सकते हैं एज लाइक concentration, concentration n by v is known as concentration C, जो हमने पढ़ा है मोलारिटी के अंदर। तो यही एक्टिव मास हुआ करता है मोल और पर लीटर। तो एक्टिव मास के बारे में गुल्डबर्ग और वार नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, इज नोन एज लॉ ऑफ एक्टिव मास। उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्टिव मास। आगे हम पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक्टिव मास का लॉ, गुल्डबर्ग एंड वॉक का लॉ, और हाउ टू कैलकुलेट एक्टिव मास, सम एग्जांपल बेस्ड ऑन एक्टिव मास। ओके, थैंक्स फॉर विजिट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों।